धन्यवाद Thank you सर। so much, sir, for your valuable suggestions. And all the student taking from here, they will be taking their suggestion and will try to have a project on that. So thank you so much, sir. Okay, thank you. Now I will be inviting Divya Rawat ma'am to continue her today's class. Ma'am, are you there? Yes. Good evening, ma'am. दिव्या मैम आ गई भाई। Yeah. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग Yeah. मैम। गुड इवनिंग मैम। Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. I would request everyone, please mute yourself because you can understand 300 evening, more ma'am. participants are there. It is very difficult. Okay, so please mute yourself. The timing for the questions will be given to you. उस समय आप ऑन करिएगा माइक, प्लीज अभी माइक ऑन नहीं कीजिए, प्लीज कीप योर माइक ऑफ। Okay. So now I'm going to start this session. अब मैं इस सेशन को आज स्टार्ट कर रही हूँ और कल जैसे I'll give you I already gave you an introduction about the mushroom cultivation and how to do or how to start this mushroom business. मैंने एक ब्रीफ आइडिया आपको दिया था कि मशरूम की खेती को कैसे करें और कैसे करके आप मशरूम का व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। Now today I'm explaining about the two varieties of mushrooms. आज मैं दो प्रकार की mushrooms के बारे में आप लोगों को समझाऊंगी and we will be discussing first initially when we will start this presentation we will discuss about the different varieties of mushrooms as per the temperature. इस क्लास को दो पर्टिकुलरली दो मशरूम के बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊंगी उससे पहले मैं आपको कुछ विभिन्न प्रकार की मशरूम्स के बारे में बताऊंगी और वो किस किस तापमान पर उगाई जाती है उसके बारे में बताऊंगी। जिस तरह से आप लोगों ने कल मुझे बोला था कि टेम्परेचर बेसिस पे आप उसको कैटेगराइज करके बताइए, तो आज हम लोग वही करेंगे। सो वी हैव कैटेगराइज्ड mushrooms as per the temperature and I'll be showing you first that and then we will be continuing this entire session about the cultivation of oyster mushroom and milky mushroom. So here I am sharing my screen with you all first. So now, today we will discuss about the seasonal mushroom cultivation and that is including oyster and milky mushroom cultivation. तो आज हम सीजनल मशरूम कल्टीवेशन की बात करेंगे और उसमें हम मिल्की और ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन को हम लोग कवर करेंगे। उससे पहले we have to understand that here we are initially we will be discussing about year round cultivation of mushroom according to temperature, यानी कि मशरूम की खेती साल भर कैसे की जाए तापमान के अनुसार। and one of the very important thing which I am discussing today is natural cultivation condition, like natural condition cultivation। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो natural condition cultivation है, ठीक है। तो वो नेचुरल कंडीशन कल्टीवेशन में आप किस तरह से इस खेती को करेंगे। आज हम लोग ऑयस्टर मशरूम की बात करेंगे। इस ऑयस्टर मशरूम में ऑयस्टर मशरूम की जो हम लोग बात करेंगे आज, तो उसमें ऑयस्टर की बहुत सारी विभिन्न प्रजातियां होती हैं। जैसे कि सबसे पहले है ये व्हाइट ऑयस्टर मशरूम, दिस इज व्हाइट ऑयस्टर मशरूम, वी कॉल इट फ्लोरिडा, इसको हम फ्लोरिडा कहते हैं। और The temperature required for cultivation is 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, अर्थात इसको उगाने के लिए जो तापमान हमको चाहिए वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस हमको चाहिए होता है। देन ब्लैक और ब्लू ऑयस्टर मशरूम, अलग अलग ये दो अलग प्रजातियां होती हैं एंड द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर दिस मशरूम कल्टीवेशन इज 16 to 18 डिग्री सेल्सियस, 16 से 18 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए होता है। Next is Sajor Kaju or the grey oyster mushroom. The temperatures required for the cultivation is 25 to 30 degree Celsius. अगला ये जो तीसरा मशरूम है ये सजोर काजू है, जिसको उगाने के लिए, जिसका उत्पादन करने के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। Then pink oyster mushroom, the temperature required is 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। गुलाबी oyster mushroom है जिसमें तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है।
And the last one oyster mushroom is yellow oyster mushroom, and the temperature required for the cultivation is 18 to 20 degrees Celsius, not the 30. There is some typing mistake, and we will correct this. 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, नॉट 30, ठीक है। 18 से 20 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है, और जब आपको ये प्रेजेंटेशन शेयर करी जाएगी तब तक हम लोग इस करेक्शन को कर देंगे। So इसके अलावा this oyster mushroom, now you can compare, like you can cultivate this oyster mushroom basically in winter season or the moderate season, ठीक है ना। जब moderate temperature का season होता है, आप सर्दियों में या जब moderate temperature का season होता है उस वक्त आप इस मशरूम को उगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मिल्की मशरूम, दैट इज हीट लविंग मशरूम। मिल्की मशरूम है, गर्मी से बहुत पसंद है, गर्मी इसको बहुत पसंद है, एंड द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन इज 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में इसको उगाया जाता है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज कैलोसाइबे इंडिका। इट मींस ये एक इंडियन मशरूम है, कैलोसाइबे इंडिका, एंड बिकॉज ऑफ इंडिया it is actually named कैलोसाइबे इंडिका। ओके, एक भारतीय मशरूम है ये, और इसी की वजह से इसका नाम कैलोसाइबे इंडिका रखा गया है। और वेस्ट बंगाल से इसका कल्चर ऑल अक्रॉस ग्लोब में फैला है, और पूरे विश्व में इसको लगाया जाता है, और ये 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो होता है। Another mushroom is Ganoderma mushroom. Ganoderma mushroom भी है, ये एक medicinal mushroom है, it's a medicinal mushroom, and the temperature required for the cultivation is 30 to 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर इसको उगाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे शिटाके मशरूम की। सो ये शिटाके मशरूम जो है ये 12 से 18 डिग्री सेल्सियस पे उगाया जाता है, और ये एक्सोटिक और मेडिसिनल मशरूम दोनों के अंदर कवर होता है। सो दिस शिटाके मशरूम इज एक्चुअली मेडिसिनल और एंड एक्सोटिक एज वेल, एंड द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन इज 12 to 18 डिग्री सेल्सियस। Now this mushroom is actually, we are also cultivating this mushroom. This is Cordyceps militaris, but although you can cultivate all mushroom in natural condition, but we are doing this cultivation in controlled condition because natural condition is not possible. ये Cordyceps militaris है, बाकी सारी natural condition की मशरूम में आप सारी जो भी मैंने मशरूम आपको पहले बताई है, आप उसको natural condition में बहुत आसानी से उगा सकते हैं, but Cordyceps militaris it means कीड़ा जड़ी, तो आपको कंट्रोल कंडीशन में ही उगाना होता है, ये लैब के अंदर उगती है, एंड द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन इज 18 to 22 डिग्री सेल्सियस। इसको उगाने के लिए 18 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होता है, और दिस इज वन ऑफ द वेरी एक्सपेंसिव मशरूम, एंड वी सेल एट द रेट ऑफ 3.5 लाख रुपीज पर केजी। ये मशरूम बहुत महंगी बिकती है, और हम लोग इसको 3.5 लाख रुपए पर केजी के रेट से इसको सेल करते हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं मशरूम कल्टीवेशन में स्पेसिफिकली ऑयस्टर एंड मिल्की मशरूम के ऊपर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पेसिफिकली ऑन ऑयस्टर एंड मिल्की मशरूम। सो लेट्स बिगिन। Mushroom cultivation involves preparing the substrate, inoculating it with spawn, and providing the right growing condition. When the right growing condition is given to the mushroom, then your harvest will be ready. Okay, तो इसका मतलब है मशरूम उत्पादन में सबस्ट्रेट की तैयारी, स्पॉन के साथ इनोकुलेशन और उचित उगाने की स्थिति प्रदान करना शामिल होता है। ठीक है, और जैसे ही आप इसको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट देंगे ताकि ये ग्रो कर पाए, तब ये आपकी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो जो भी मशरूम है वो कुछ साइकिल्स में डिवाइडेड होती है, उन साइकिल्स के बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेन में बात करेंगे। I'll explain you about the detailed procedure. So oyster mushroom cultivation specification include a substrate like straw or sawdust, maintaining a controlled environment or a natural environment like
मेंटेन कंट्रोल एनवायरनमेंट विद इन, इट्स नॉट कंपल्सरी कंट्रोल एनवायरनमेंट, इट मींस कि आपको अपने कमरे के अंदर, इसमें जो कंट्रोल एनवायरनमेंट की बात हुई है, इट मींस यू हैव टू मेंटेन समहाउ 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, और यू कैन कल्टीवेट दिस मशरूम ड्यूरिंग विंटर सीजन or the moderate one. And today we are discussing about the white Florida oyster mushroom. So the process for all different varieties of oyster mushroom will be similar. The only difference will be the temperature difference. So as per the different varieties of oyster mushroom, you have to maintain different temperature. So for this oyster Florida, you need to maintain like 20 to 25 degrees Celsius, relative humidity around 85 to 95%, adequate air circulation, and inoculating with mushroom spawn. The temperature plays a crucial role in the growth and development of oyster mushroom. अर्थात oyster mushroom उत्पादन में क्या होता है, इसमें इस उत्पादन में भूसा या लकड़ी का बुरादा, भूसा या लकड़ी के बुरादे के अलावा you can use paddy straw, that is the पुराल, the सेड, आप पुराल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइस स्ट्रॉ, लकड़ी के बुरादे, सब्सट्रेट का उपयोग किया जाता है। नियंत्रित वातावरण जहां तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता है वो 85 to 95% होनी चाहिए, पर्याप्त हवा यानी कि ताजी हवा, और मशरूम स्पॉन यानी कि मशरूम का बीज को हम भूसा, सॉडस्ट, जिसमें भी हम जो भी माध्यम इस्तेमाल करेंगे उसमें मिलाते हैं, और इसके साथ तापमान ऑयस्टर मशरूम के विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले इस कल्टीवेशन प्रोसेस में देयर आर 4 प्रोसीजर्स, ठीक है ना, स्टेरिलाइजेशन, स्पॉनिंग, माइसीलियम रन, फ्रूटिंग। ठीक है, सो स्टेरिलाइजेशन मीन्स शुद्धिकरण। आप भूसा लेंगे, आप सॉडस्ट लेंगे, आप जो भी सबस्ट्रेट लेंगे उसका शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। उसके बाद स्पॉनिंग यानी कि बिजाई। स्पॉन क्या होता है? स्पॉन मशरूम का बीज होता है। आपने कभी ये सुना है कि आपको जिस दुकान में आपको भिंडी, तोरी, टमाटर और वेजिटेबल्स के बीज मिलते हैं, आपको मशरूम का बीज मिलता है, यू हैव नेवर एवर हर्ड like mushroom seed is very easily available in all seed stores. You know that is not available because you know we have 3 kingdoms. We have plant kingdom, we have animal kingdom, same like that we have a fungus kingdom or a fungi kingdom. ठीक है, तो हमारा जैसे अलग अलग किंगडम्स होते हैं, पेड़ पौधों का प्लांट किंगडम होता है, जानवरों के लिए एनिमल किंगडम होता है, ऐसे ही फंगस एक अलग किंगडम है। तो इसमें बीज नहीं होते, जैसे बीज निकलते हैं आपके फल फ्रूट में से, इसके स्पोर्स होते हैं। तो स्पोर्स इतने छोटे होते हैं कि हम उसे अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते। So mushroom don't have seeds, they have spores, and spores are very small, very tiny that we can't see through our naked eyes. ठीक है, तो just to see spores we use microscopes. ठीक है, तो हम स्पोर को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, बट इन लैब, इन द टिश्यू कल्चर लैब, वी एक्चुअली जनरेट मशरूम स्पॉन थ्रू मशरूम टिश्यू कल्चर। हम लैब के अंदर मशरूम का स्पॉन मशरूम टिश्यू कल्चर के द्वारा साइंटिफिक वे से बनाते हैं। तो ये मशरूम के बीज को क्या कहा जाएगा? स्पॉन। तो द मशरूम सीड इज नॉर्मली कॉल्ड एज स्पॉन। फिर माइसीलियम रन यानी कि फफूंद का फैलना। अब माइसीलियम रन तो हर जगह होता है, ठीक है, माइसीलियम फंगस तो अब आप बताओ, अगर कहीं भी फफूंद फैलती है, फॉर एन एग्जांपल आपके रोटी में, सॉरी ब्रेड में आपने देखा फंगस लग जाती है, अचार में फंगस लग जाती है, बट आप उस फंगस को नहीं खाते बिकॉज दैट इज नॉट एडिबल, वो खाने योग्य नहीं है। यू हैव सीन मेनी टाइम्स लाइक you have seen fungus in your pickle or in your bread, but you can't eat that fungus because that fungus is not edible. That is not good that is not good for you to eat. That is not the edible fungus, but the edible fungus we call it mycelium, and the meaning of mycelium is the vegetative part of fungus is mycelium.
ठीक है, तो खाने योग्य फफूंद जो होता है वो माइसीलियम होता है। तो ये जो फंगस आप लगाओगे, ये जो फफूंद आप लगाओगे, ये माइसीलियम है। तो ये माइसीलियम आपके पूरे भूसे के बैग में फैलेगा, उसके बाद आपकी मशरूम ग्रो करना स्टार्ट करेगी। देन अब फाइनली हम इस बात पे आते हैं कि अब हमने लिया मान लीजिए भूसा या पैडी स्ट्रॉ या पुराल, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मशरूम को ग्रो करने के लिए कोई ना कोई माध्यम सबस्ट्रेट चाहिए होता है। तो मशरूम ऑलवेज रिक्वायर्ड अ मीडियम और अ सबस्ट्रेट टू ग्रो। So here we for this presentation we are using wheat straw, that is भूसा। हम यहाँ पे भूसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और you can use paddy straw as well। आप पुराल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। For an example, we have taken a tank having capacity of 200 liter, and then we have added 100 liter of water, and then we have to add 125 ml of formalin. Formalin is actually insecticide, and 10 to 12 gram of babastine. Babastine, it's a fungicide. So we have to mix formalin and babastine with the water. In the water very properly, with the water we have to mix it very properly, and then after mixing we have to soak 10 to 15 kg of wheat straw. And after soaking 10 to 15 kg of wheat straw, we have to cover this tank at least for 16 to 18 hours. आपको 16 से 18 घंटे के लिए ये ड्रम को कवर कर देना है ना। 16 से 18 घंटे के लिए आप कवर कर देंगे, ठीक है। आप 16 से 18 घंटे के लिए कब आप 16 से 18 एक मिनट जी 16 से 18 घंटे के लिए आप इसको प्रॉपरली कवर कर देंगे, ठीक है। अब क्या है किया हमने इसमें, हमने 200 लीटर का टैंक लिया। इस 200 लीटर के टैंक में हमने 100 लीटर पानी डाला, उसमें फिर हमने 125 ml फॉर्मलिन, 10 से 12 ग्राम बेबस्टीन को अच्छे से मिलाया, 10 से 15 किलो भूसा मिलाया, और इसको 16 से 18 घंटे के लिए बंद कर दिया, ठीक है। After 16 to 18 hours, drain out the excess water. Spread wheat straw to reduce the moisture level and allow formalin to evaporate. Bring down the moisture level to 50 to 60%. ठीक है। 16 से 18 घंटे के बाद, इसमें हिंदी में 6 से 18 हो गया, and we'll correct that thing. That is 16 से 18 घंटे। 16 से 18 घंटे के बाद अधिक पानी जितना भी होगा उसको निकालेंगे और इस भूसे को प्रॉपरली फैलाएंगे ताकि इसकी नमी 50 से 60% आए। अब 50 से 60, जब आप इस भूसे को निकालोगे उस वक्त इसका मॉइस्चर लेवल 100% होगा। उस 100% मॉइस्चर को हमें 50 to 60% लेकर आना है। तो हम इसको फैलाएंगे, और इसको फैलाएंगे हम लगभग 12 से 24 घंटे के लिए। So we will spread this wheat straw for 12 to 24 hours, and then after this the inoculation process will start, ठीक है। Once initially you have to spread the wheat straw. Spreading of wheat straw is already done. आपने भूसे को फैलाया इस तरीके से जैसे मेरी फोटो में है। उसके बाद you have to do the spawning. Spawning करनी है, भूसा और बैग को भूसे में बीज को मिलाना है। It means you have to mix spawn and wheat straw together. You have to mix it very well. जैसे properly mix spawning करनी है, जैसे खिचड़ी में दाल चावल मिलाते हैं ना, उसी तरीके से आपको इसकी स्पॉनिंग करनी है, आपको मिक्सिंग करनी है, and you have to prepare the bags. Once like you will start preparing these bags, for this preparation you need to use poly bags, and the size of the poly bags will be 12 by 14 inches. आपको जिस पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल करना है उसका साइज 12 से 14 इंच होगा। आपने भूसा और स्पॉन अच्छे से मिला दिया, देन आपने you have to cut the corners so that extra water should drain out. आपको कॉर्नर्स को काटना है ताकि एक्स्ट्रा पानी बाहर निकले, और 10 से 12 घंटे और 10 से 12 छेद करने हैं। आपको ऊपर से पहले इसकी टाई द नेक ऑफ बैग, मतलब आपको नॉट बांधनी है ऊपर, ठीक है। बैग का मुंह ऊपर से गांठ बांध देनी है, एंड यू हैव टू मेक 10 to 12 होल्स। तब आपको 10 से 12 होल्स इसमें करने हैं फॉर द एरेशन इन
होल से हवा आर पार जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट ये बैग बनाने के बाद आप ये बैग्स माइसीलियम रन के लिए अंदर जिन कमरों में मशरूम लगाई जाती वहां शिफ्ट करेंगे। आफ्टर दिस माइसीलियम रन प्रोसेस यू विल शिफ्ट दीज ऑल बैग्स in the growing room and the mycelium run duration will be for 14 to 15 days। तो ये mycelium run का जो प्रोसेस है ये 14 से 15 दिन का प्रोसेस रहेगा। and the golden brown color of your wheat straw will turn into white color। जो गोल्डन ब्राउन कलर था भूसे का वो सफेद रंग में बदल जाएगा, ये फफूंद पूरी फैल जाएगी। देखिए यहाँ हाथ में जो भूसा है वो ब्राउन है, पर यही भूसा फिर ऐसा सफेद हो जाएगा। Within 14 to 15 days के अंदर जब ये भूसा पूरा स्प्रेड हो जाएगा, then the fruiting phase will start and for this fruiting stage will start on the 16th day। 16वें दिन से पैदावार शुरू होगी और ये 20 से 25 दिन आपकी लगातार चलेगी। and during mycelium run process and the fruiting process you need to maintain temperature between 20 to 25 degrees Celsius somehow। for the mycelium run you have to maintain 20 to 28 degrees Celsius, but for the fruiting you need to maintain 20 to 25 degrees Celsius temperature। mycelium run के लिए आप 20 से 28 डिग्री भी मेंटेन करेंगे तो चलेगा, परंतु फ्रूटिंग के लिए आपको 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखनी है साथ ही में, और इसी तरीके से आपको बीच बीच में इसमें फ्रेश एयर भी देनी है। और नेक्स्ट आता है मिल्की मशरूम। अब हम जब मिल्की मशरूम की बात करते हैं, so milky mushroom is a tropical edible mushroom that is Calocybe indica mushroom known for its milky white appearance and delicious taste। It prefers a temperature range of 30 to 38 degrees Celsius and high humidity levels of 80 to 90%। It grows well on various agriculture-based substrates such as paddy straw or wheat straw। It requires proper air circulation and a controlled environment for optimal growth and yield। Milky mushrooms are rich in protein, minerals, and vitamins, making them a nutritious choice for consumption। ठीक है, मिल्की मशरूम जो है वो एक ट्रॉपिकल मशरूम है जो अपने सफेद दिखावट यानी कि जिसका इतना ब्राइट व्हाइट कलर है उसके लिए पहचानी जाती है, और ये बहुत डिलीशियस भी होती है। और 30 से 38 डिग्री तापमान में ये उगती है, जिसमें कि आर्द्रता यानी कि हाई ह्यूमिडिटी हमको चाहिए होती है 80 से 90%। 40 भी तापमान जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसे धान के पुआल यानी कि पैडी स्ट्रॉ या गेहूं के भूसे में उगाया जाता है। ये एग्रीकल्चर वेस्ट या और भी कोई आप इसके अलावा सॉडस्ट वगैरह में भी आप इसको उगा सकते हैं, और इसके लिए प्रॉपर एयर फ्लो और कंट्रोल एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है ताकि इसकी ग्रोथ और प्रोडक्शन पर्याप्त हो सके। मिल्की मशरूम प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल से भरपूर होते हैं, जिससे यह खाने के लिए न्यूट्रिशियस ऑप्शन के रूप में चुना जा सकता है। ठीक है, अब मिल्की मशरूम की हम लोग बात करेंगे। अब इससे पहले मैंने आपको बताया था केमिकल स्टेरिलाइजेशन, और यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगी नॉन केमिकल मेथड यानी कि लाइम वाटर स्टेरिलाइजेशन। Earlier in oyster mushroom we have discussed about the chemical sterilization, and now here in milky mushroom session we will discuss about non-chemical sterilization method or chemical free method, that is the lime water sterilization। ठीक है, अब this chemical sterilization is same applicable for the oyster, for milky mushroom, and lime water sterilization in milky mushroom is same applicable for oyster mushroom as well। chemical and non-chemical method जो oyster और milky में पढ़ाए हैं ये एक दूसरे के लिए applicable है। आप चूने का शुद्धिकरण oyster mushroom में भी कर सकते हैं। ठीक है, so here we have taken a tank having capacity of 200 liter, and in this tank then we will add 100 liter of water, and after adding 100 liter of water we need to add 10 to 2 kg dehydrated lime। It means CaCO3 and it should be dehydrated।
And then after adding, we need to soak 10 to 15 kg of wheat straw. And then after soaking wheat straw, we need to cover it for 16 to 18 hours. 200 लीटर का टैंक लिया है, 200 लीटर की क्षमता का टैंक लिया है, जिसमें 100 लीटर पानी को हमने इसमें भरा. Ma'am, can you just repeat because we just joined, we were in the other room. We didn't know that there is a new link. Can you quickly repeat what you just covered in last few minutes? Last few minutes or the entire thing which I have taught? Just quickly give us a glimpse of that, because we were in the other room. We just realized that there's a new link which we got very late. Okay, not an issue. So I'll just give you a brief introduction for 2-3 minutes. All right. Fine. That'll be good. That'll be good. Thank you so Okay, okay, not an issue, not an issue. I'll repeat it. So today we are discussing about the milky and oyster mushroom cultivation. And first, before discussing about the cultivation process, I have shown the different varieties of mushroom as per the temperature. So all these 5 mushrooms are the varieties of oyster mushroom. The first one is Florida, the white mushroom, and that the temperature required for the cultivation is 20 to 25 degrees Celsius. This one is blue, and the same black is also there, and the temperature required for the black and blue mushroom cultivation is 16 to 18 degrees Celsius. And this one is gray mushroom, temperature required for the cultivation is 25 to 30 degrees Celsius. Pink one 25 to 30 degrees Celsius, and yellow one 18 to 20 degrees Celsius. 30 is the typing mistake from our side, and we will correct it. And then milky mushroom, temperature required for the cultivation is 30 to 40 degrees Celsius. Ganoderma mushroom, temperature required is 30 to 35 degrees Celsius. Shiitake mushroom, 12 to 18 degrees Celsius. Cordyceps militaris, we are doing this, and this is one of the very expensive mushroom, and we are doing it. we lost your voice. Pardon? Could you please repeat what you said? Yeah, now we got it back. So earlier we just lost your voice. Okay. So this one is the Cordyceps militaris mushroom, and this is one of the very expensive mushroom. We are selling at the rate of 3.5 lakhs rupees per kg, and the temperature required is 18 to 22 degrees Celsius. But the lab structure is required for the cultivation because this is very scientific mushroom. So we are talking about the oyster and milky mushroom cultivation. So here for the oyster mushroom cultivation, we are discussing about the white oyster mushroom cultivation, that is Florida. And for this Florida mushroom cultivation, the temperature required is 20 to 25 degrees Celsius. But the other varieties which I have shown you initially, the process will be same for the all species for the all varieties of oyster mushroom, but the difference will be the temperature. So you can maintain the temperature as per the different varieties of oyster mushroom, or you can cultivate oyster mushroom as per the different temperature or the weather condition. All right. So the entire process is divided into 4 parts for the oyster mushroom cultivation: sterilization, spawning, mycelium run, and fruiting. So we just spoke about the sterilization, that is the chemical sterilization, and in milky mushroom I have already discussed about the non-chemical method. So I am explaining both methods one by one. So here we are discussing about the chemical sterilization. For this, we have taken a tank having capacity of 200 liter, and then we have added 100 liter of water, and this we will add 125 ml of formalin and 10 to 12 gram of bavastine. Formalin, it's an insecticide, and bavastine, it's a fungicide. So we have to mix it very well, and then after mixing, we have to add 10 to 15 kg of wheat straw. And then after adding 10 to 15 kg of wheat straw, we have to cover it for 16 to 18 hours. And after 16 to 18 hours, we have to drain out extra water and make it dry for 12 to make it dry for, or make it like you have to spread for 12 to 24 hours, so that the moisture level should come down. And then we will be like preparing these bags. We have to mix spawn and wheat straw together, and then we have to fill inside these bags. We have to cut the corners
from the bottom so that extra water should drain out, and we have to make holes, 10 to 12 holes for the aeration process. And then after spawning process, the mycelium run process will start, and the mycelium run process will take 14 to 15 days, where the vegetative part of fungus as mycelium will spread in entire wheat straw, and the golden brown color of your wheat straw will turn into white color. And after mycelium run process, the fruiting phase will start on 16th day. The fruiting phase will start onwards. It will start, and the next 22 to 25 days you will be harvesting your oyster mushroom regularly, and for that you need to maintain temperature 20 to 25 degrees Celsius and humidity 80 to 85%, and you have to give fresh air for 6 to 12 hours. So we have completed. मैडम माइसिलियम रन होने के बाद थैली हटानी पड़ेगी क्या? Pardon? बोलिए. मैडम माइसिलियम रन होने के बाद पॉलीथीन बैग से पॉलीथीन हटानी पड़ेगी? नहीं हटानी, नहीं फाड़ना. बहुत पुराने प्रोसेस अब जरूरत नहीं है, ठीक है. और मैम 20 to 25 days बाद जो फ्रूटिंग हो जाए. In natural condition, how do we manage this humidity and temperature? Because artificially we can do that, but naturally how we do that? Very easy. For maintaining humidity, आपको फर्श और दीवार में पानी डालना है बस. What is related and for to temperature? Temperature is जैसा तापमान वैसे मशरूम लगाओगे ना. Okay. That Okay. is what I'm मैम 20 to 25 days बाद जब फ्रूटिंग आप कह रही हैं कि 20 to 25 days तक होती है, तो मैम उसके बाद फिर क्या करना पड़ता है? उसके बाद जब बैग्स में से सारे मशरूम निकल जाएंगे तो बैग्स को आप बाहर डंप कर दोगे और नए बैग्स लगाओगे, और इसको आप गड्ढे में डालोगे अगर, तो इसका कंपोस्ट बन जाएगा फॉर फार्मिंग. 6 महीने बाद निकालोगे. ओके मैम. क्योंकि माइसीलियम होता है, उसमें नाइट्रोजन लेवल बहुत हाई होता है और वो आपकी फार्मिंग के लिए बहुत ही यूजफुल होता है. ओके मैम. How do we mix the spawn with this bhusa? जैसे खिचड़ी के लिए यू हैव टू मिक्स दाल चावल ना, सेम लाइक दिस, एंड यू कैन सी फ्यू ऑफ माय वीडियोस इन द YouTube. अच्छा. But the spawns we cannot see the spawns by naked eye, right? Just write down mixed spawning. Mig. Mixed, M-I-X-E-D, mixed. Mixed spawning, yeah. Mixed spawning, तो पता चल जाएगा आपको. Acha, but ma'am, if the spawns we cannot see by naked eye, how do we mix everything? नहीं. We spores you can see through naked eye, but we prepare a spawn inside the lab through tissue culture, and we actually run this mushroom mycelium आपके wheat grains के ऊपर. अच्छा. Yes, that is possible. आप Google में डालना mushroom spawn, you will see it. Okay. But मैम हम लोग तो हेलो मैं आगे ना क्लास पढ़ा देती हूँ, फिर आप लोगों को क्वेश्चन पूछने का टाइम दूंगी, क्योंकि ये छूट जाएगा नहीं तो सारा आपका आगे का एक बार. तो सारे क्वेश्चन एक ही बार में कवर कर लेंगे. मैं फटाफट से आई एम गोइंग टू टेक हार्डली 5 minutes. ऑलराइट. Okay, ma'am. ठीक है. So the first initial process for the milky mushroom is the lime water sterilization, and similarly this lime water sterilization is applicable for the oyster mushroom, and the chemical sterilization is applicable for milky. तो chemical non chemical method दोनों एक दूसरे पे आप अप्लाई कर सकते हो. So this dehydrated lime is actually बुझा हुआ चूना. आप जब भी चूने का इस्तेमाल करते हो, लाइम का पानी में डाल देते हो, बबल्स निकलता है ना, that is hydrated lime. And that is not good for the skin, and that is not good for the human being. But the dehydrated lime is very good. Dehydrated lime is बुझा हुआ चूना, where people are using, वो जिम में भी तो इस्तेमाल करते हैं lime as a powder. That is the lime. ठीक है. And after आपको 16 से 18 घंटे के लिए इसको फैला दे, मतलब after 16 to 18 hours आपने इसको अच्छे से फैला देना है, and then your spawning will start. For the spawning process, we will be doing layer spawning. So layer spawning means, here you can say
Initially, again we are using 12 by 14 inches bag, poly bags, and then we have to cut the corners from the bottom so that the excess water should drain out. निचले स्तर से नीचे वाले भाग में हम दोनों कोनों को काट देंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी बाहर आ जाए. And then we will be doing the layer spawning. हम परत बिजाई करेंगे. First we will put like post, wheat straw, then spawn, then wheat straw, then spawn, then wheat straw, and then spawn. ये this brown one is the wheat straw and the white one is the spawn. ठीक है. तो हम परत बिछाएंगे. पहले हम भूसे की लेयर को डालेंगे, फिर स्पॉन डालेंगे, फिर भूसा डालेंगे, फिर स्पॉन, फिर भूसा, फिर स्पॉन. सो देयर विल बी 3 layers of wet wheat straw and 3 layers of spawn. तो 3 लेयर भूसे की होगी, 3 लेयर स्पॉन की होगी और 3 लेयर जो भूसे की होगी उसका टोटल वजन 2 किलो होगा. The total weight of 3 layers of wet wheat straw will be 2 kg. So, and the total weight of spawn will be 100 gram. It means 5% of wet wheat straw. तो हम टोटल जो वेट होगा, जो आपको टोटल एक बैग में स्पॉन डालना है, that is 100 grams in all 3 layers. यानी कि 33.3 ग्राम समथिंग इन ईच लेयर. 33.3 ग्राम या 33-34 ग्राम के बीच में आपको हर एक लेयर में स्पॉन डालना है. तो इनिशियली लाइक व्हाट यू विल बी डूइंग, यू आर यूजिंग सम कप और योर बाउल समथिंग काइंड ऑफ thing which is having like उसमें 33 or 34 gram spawn you are taking every time, but after filling 15-20 bags you will be getting approx idea कि आप जब उसको उठाओ तो आपकी मुट्ठी में ही वो उतना है. तो 15-20 बैग बनाने के बाद आ जाता है. एंड वन मोर थिंग इज कि ऑयस्टर मशरूम के लिए हियर द स्पॉनिंग रेशियो इज डन ऑन द बेसिस ऑफ वेट विथ स्ट्रॉ. मिल्की मशरूम में स्पॉन हम गीले भूसे के हिसाब से डालते हैं, बट इन ऑयस्टर मशरूम वी कंसिडर द स्पॉनिंग रेशियो एज पर द ड्राई वेट. हम ऑयस्टर मशरूम में सूखे भूसे के हिसाब से डालते हैं. अगर हम सूखा ले रहे हैं भिगाने से पहले, अगर हमारे पास 10 किलो सूखा है तो वी विल बी यूजिंग 1 kg ऑफ स्पॉन, यानी कि 10% ऑफ वेट व्हीट ड्राई व्हीट स्ट्रॉ. इफ वी आर यूजिंग 100 kg of dry wheat straw in oyster mushroom, then we'll be using 10 kg of spawn as per the 10% of dry wheat straw. Oyster mushroom में हम सूखे भूसे के हिसाब से 10% लेते हैं. सूखा भूसा 10 किलो होगा तो 1 किलो स्पॉन होगा. सूखा भूसा 100 किलो होगा तो 10 किलो स्पॉन होगा. बट इन मिल्की मशरूम हम गीले भूसे के हिसाब से लेते हैं. वी टेक स्पॉनिंग रेशियो एज पर द वेट विथ स्ट्रॉ इन मिल्की मशरूम. ठीक है. अब इसके बाद वी हैव टू मेक 10 to 12 होल्स फॉर द एरेशन प्रोसेस. 10 से 12 छेद करेंगे, हवा आर पार जाए. और ऑयस्टर मशरूम में तो इन्हीं छेदों से हवा, इन्हीं होल से मशरूम बाहर आती है. मिल्की मशरूम में होल से नहीं आएगी. हाँ, फिर अगेन देयर इज सम टाइपिंग मिस्टेक, दैट इज द ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन प्रोसेस नहीं है, ये मिल्की मशरूम कल्टीवेशन प्रोसेस है. डोंट वरी, वी विल करेक्ट एवरीथिंग फॉर यू पीपल. सो द प्रोसेस इज गोइंग टू टेक 15 to 20 days. ये सारा का सारा प्रोसेस 15 से 20 दिन का समय लेता है. एंड विद इन 15 to 20 days गोल्डन ब्राउन व्हीट स्ट्रॉ विल कन्वर्ट इनटू व्हाइट. सुनहरा भूरे रंग का भूसा आपका सफेद कलर में बदल जाएगा. और इसके बाद फॉलोइंग फ्रॉम 21st डे, 21वें दिन हमें केसिंग चाहिए होती है. देखो यहाँ पे 21st डे, ठीक है. जब 21वें दिन हमें केसिंग चाहिए होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसकी तैयारी हम लोग 11वें या 12वें दिन से शुरू कर देते हैं. 11वें 12वें 13वें दिन से, क्योंकि 21st डे हमें चाहिए. जब माइसीलियम रन चल रहा होता है अंदर तो वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग केसिंग. And what is the main role of casing? I'll explain you later, but we have to understand about how to make a casing. Casing का रोल के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी, पर पहले casing बनती कैसे ये बात करना is very important. So for casing preparation we have to take 80% manure which will be 18 months older. 80% खाद चाहिए जो 18 महीने पुराना होगा, और 20% wet coco peat, यानी कि 20% we will be using wet coco peat. ठीक है. तो
18 महीने पुराना गाय या भैंस का जो खाद होता है, यू कैन यूज एनी मैन्योर, काउ और बफेलो मैन्योर, सो इट शुड बी 18 months older. For the coco peat, like if you wet means here you have, in this pic you can see like we have 5 kg dry coco peat. Block size is 5, the block weight will be 5 kg. ठीक है, ये 5 किलो का ब्लॉक है कोकोपीट का. हम इसको पानी में भिगाएंगे फॉर 48 hours, एंड आफ्टर 48 hours, after soaking in 48 hours, weight will naturally increase, but the main thing is volume will also increase 5 times. It becomes 5 times in size and weight both. इसका आकार और वजन 5 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा. सो ये वेट कोकोपीट वी नीड टू यूज. ठीक है, और something like this, अगर if you are using 80 kg of wheat straw, it means you need to use 20 kg of wet coco peat. wet. ठीक है, 80 किलो खाद मिलाओगे अगर, तो 20 किलो तो आपको कोको पीट चाहिए. For this 20 kg, you need to take only 5 kg dry coco peat. Once you will soak that coco peat in the water, that will convert into 20 kg. The volume and weight will increase at least 5 times. ठीक है, तो जब आपको कोको पीट चाहिए तो आप 4 किलो का कोको पीट लोगे और उसको आप पानी में भिगा दोगे 48 घंटे के लिए. 48 घंटे के बाद इसका वजन और आकार 5 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा और ये 20 किलो बन जाएगा अपने आप ही. तो आपको वेट 20 लेना है, तो 4 आपको ड्राई लेना है. फिर इसके बाद यू हैव टू मिक्स दिस कोको पीट एंड manure together, and then you have to take a 100 liter of water, and then in that particular 100 liter of water you have to mix 5 liter of formalin, and then you have to spray this solution very properly in entire casing. ठीक है, 100 लीटर पानी लेना है, उस 100 लीटर पानी में 5 लीटर फॉर्मेलिन डालना है और उसको बहुत अच्छे से मिलाना है. और मिलाने के बाद आपको इसका अच्छे से छिड़काव करना है सारी केसिंग के ऊपर. एंड देन यू हैव टू कवर दिस केसिंग फॉर 2-3 days, एंड आपको इस केसिंग को 2 से 3 दिन के लिए ढककर बंद कर देना है. आप ऊपर में भी ढक के, मतलब आप बाहर भी रख सकते हो, छत होने की जरूरत नहीं है. आप त्रिपाल यानी कि ब्लैक पॉलिथीन से आप इसको कवर कर दीजिएगा. एंड देन कीप दैट इट ओपन फॉर 2 days. 2 से 3 दिन के बाद, ढकने के बाद इसको 2 दिन के लिए आप इसे खुले में रखोगे, और उसके बाद देन फाइनली योर केसिंग विल बी रेडी. और आप ये केसिंग 21st day यूज करोगे. ठीक है, फॉर यूजिंग दिस केसिंग ऑन 21st day, व्हाट यू नीड टू डू इज एक्चुअली, जो इसका अपर लेयर है ना, अभी तक ये बैग बंद था, वी हैव टू ओपन दिस बैग. इस बैग को खोलना है. वी हैव टू अनटाई दिस बैग, जो नॉट बांधी थी उसको अनटाई करनी है, उसको खोलना है. And then you have to spread 2-inch casing layer on the top. आपको 2 इंच की केसिंग लेयर ऊपर, सबसे ऊपर लेयर में फैलानी है. With like you have to use very light hands. आपको बहुत ही हल्के हाथ से इस केसिंग को फैलाना है. और फिर 2 इंच की आपने केसिंग करी है. Why you have done this casing? Because through this casing your mushroom will be getting fresh air and water. Because if you give directly fresh air and water, then if you are not using casing and you are giving directly fresh air and water to the mushroom, what will happen? Your wheat straw or paddy straw will get damaged. That will start decomposing. Because this is not a soil. This is actually we are using wheat straw. So we have to use a medium to give water and fresh air so that the good quality of mushroom can grow. तो केसिंग एक माध्यम है जिसके द्वारा हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से हवा और पानी देते हैं. क्योंकि आप इसमें पैडी स्ट्रॉ या व्हीट स्ट्रॉ, गेहूं का भूसा, पुराल को इस्तेमाल करते हैं. अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? अगर केसिंग नहीं है, डायरेक्ट डाल दिया तो वो तो सड़ेगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा. तो इसीलिए केसिंग का 2 इंच का लेयर डालना है और वाटरिंग सिर्फ केसिंग में ही करना है. ठीक है, केसिंग से नीचे नहीं करना है वाटरिंग, सिर्फ केसिंग तक करना है.
एंड देन आप इस केसिंग के द्वारा आप मशरूम को पानी दोगे, और this entire process will take 15 to 20 days. Again, during this process, you need to maintain temperature 30 to 40 degrees Celsius, humidity 85%, and watering up. You can do this watering on the alternative basis. एक दिन छोड़ के या एक दिन, same like you people are doing in the farming, कि आप अपने cultivation में भी ऐसा ही करते हैं, खेती में भी करते हैं, जब जब पानी की जरूरत होती है तब तब पानी डालते हैं ऊपर, तो उसी तरीके से आपको केसिंग में भी पानी डालना है. And then finally, from the 41st day, the 20 days is for mycelium run process and the next 20 days is for the case run process. 20 दिन mycelium run फफूंद फैलेगा, 20 दिन केसिंग होगी, केस रन फैलेगा, एंड 41वें दिन से आपकी फ्रूटिंग स्टार्ट होगी. From the 41st day your fruiting will start. ठीक है, आपकी पैदावार शुरू होगी, and this fruiting phase will be continued for next 60 to 90 days. ये पैदावार का जो फेज है ये अगले 60 से 90 दिन तक कंटिन्यू चलता रहेगा. 60 से 90 दिन तक आपको हवा पानी देनी है, और बीच में आपको इसमें जब आपका 41st डे आता है तो हम लोग इसमें लाइट भी देते हैं. लाइट 200 लक्स होती है, बहुत ही डिम रोशनी होती है, और इसकी जो खेती होती है जस्ट लाइक अ सनफ्लावर हमेशा रोशनी की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसकी तरफ डायरेक्शन मिलता है, तो लाइट से इसको डायरेक्शन मिलता है. हम दिन में 10 से 12 घंटे के लिए कमरे के अंदर 200 लक्स की रोशनी का इंतजाम करते हैं, और इसको 10 से 12 घंटे के लिए हम लोग 200 लक्स रोशनी देते हैं, सो दैट इसका डायरेक्शन लाइट की तरफ जाए, ये ऊपर की तरफ अच्छे से ग्रो हो पाए. 200 लक्स से कम दोगे तो उगना मुश्किल होता है, 200 लक्स से ज्यादा रोशनी दोगे तो इसकी ग्रोथ को रोकेगा. सो वी डू एक्चुअली एक्सपोज milky mushroom in front of light, and the lux will be 200 lux, so that and the main important role of light is to give direction, and that is only applicable for the milky mushroom. We expose in 200 lux light for 10 to 12 hours each day. We do this process for the while following the fruiting phase. ठीक है ना? तो इसमें we have to maintain humidity, that is 90%, आर्द्रता 90% रखनी है फर्स्ट दीवार में पानी डाल के, एंड उसको मेजर करने के लिए यू कैन यूज हाइग्रोमीटर. अब ये तो पूरा कंप्लीट हो चुका है. नाउ Ma'am, 200 lux in wattage. How much is wattage? 200 lux. 200 lux is, it's not about the voltage, it's about the area, the room size. So we do have so many apps. बहुत सारे अलग अलग एप्स आते हैं, तो आप उन एप्स का इस्तेमाल करिएगा. आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं. यू कैन लाइक उस ऐप को खोलिएगा, आप लाइट के सामने रखिए, दैट विल टेल यू कि कितना लक्स है रूम में, कितनी ब्राइटनेस है. ओके, वन मोर थिंग, ऑयस्टर मशरूम एंड मिल्की मशरूम की जो यील्ड होती है, ठीक है, वो कैसे हम डिफाइन करते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजिकल एफिशिएंसी. ठीक है, बायोलॉजिकल एफिशिएंसी कितनी होगी, कितने भूसे में कितना मशरूम उगेगा, समथिंग लाइक दिस. सो 70 to 80% ऑफ ड्राई व्हीट स्ट्रॉ we will be the getting of yield. कितना? 70 to 80% ऑफ ड्राई व्हीट स्ट्रॉ. अगर भूसा 100 किलो है तो हमको 70 से 80% उस भूसे का हमको 70 से 80 किलो मशरूम मिलेगा. If we have 100 kg of dry wheat straw, we'll be getting 70 to 80 kg of mushroom from that, and that is applicable for oyster and milky mushroom. मैम, as you said that डिजीज और पेस्ट का प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे हम करेंगे, जैसे वेस्टर्न मशरूम में रहते कल कवर करेंगे, कल के सेशन में we will be discussing. Yes, yes, थैंक यू. इसको स्टोर ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है मैम, करने के लिए. मशरूम निकलने के बाद कितने दिनों बाद रोस्टिंग करते हैं? उसमें मिक्स्ड स्पॉनिंग नहीं करते, लेयर वाली स्पॉनिंग करते हैं. किसमें? ऑयस्टर में मिक्स्ड नहीं, बट मैं जो उगाती हूँ उसमें लेयर करती हूँ. नहीं, मिक्स्ड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा, मिक्स्ड ज्यादा अच्छा रहेगा. मिक्स
लेयर मशरूम अच्छा निकलने के रहता है, कितने पर दिन बाद अगर फर्क 2-3% का है तो आपको मिक्स करने में इतना लेबर इंटेंसिव मत करो। जितने की मशरूम नहीं लगेगी उतने का आपको लेबर को खर्चा देना पड़ जाएगा, बट Yes, मिट्टी में लेबर बेटर रहती है, अच्छा रिजल्ट आता है काफी। Okay. Okay. Hello, मशरूम ma'am. निकलने के If I कितने have दिनों to बाद go आप next. harvesting मैम Hello. जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें एक्चुअली मैं स्टीम मेथड में करता हूँ। हाँ बिल्कुल सही है। केमिकल मेथड में किया था मैंने पहले, मतलब बड़ा करके जब करता था तभी तो बहुत फंगस का प्रॉब्लम आया था, ब्लैक मोल्ड का प्रॉब्लम आया था, तो इसीलिए अभी स्टीम मेथड में कर रहा हूँ। बाद में जब ड्राई होने के बाद थोड़ा चूना वगैरह दे देता हूँ के भूसे के साथ, तो अभी रिजल्ट में मतलब 100% आ रहा है, एक भी खराब नहीं होता। बिल्कुल बहुत बढ़िया है, आप बिल्कुल स्टीम मेथड करो और आप स्टीम चैम्बर्स भी यूज कर सकते हो उसके लिए। अगर भूसे के बदले सॉडस्ट यूज करते हो तो ऑर्गेनिक हो जाएगा। मैंने तो जो कैस्ट्रोल का टीन का ड्राम होता है ना 210 लीटर, उससे ऑटोक्लेव जैसा बना लिया, पूरा होल्डिंग करके पूरा ऑटोक्लेव जैसा, वही प्रोसेस होता है। Which mushroom taste like a non-veg? Which mushroom taste like a non-veg? I'm not audible. No, Which sorry, you're not mushroom audible. tastes like a non-veg? Which mushroom No, it's tastes not a like non-veg thing. Mushroom is a totally vegetarian product. It's not a taste non-veg. like a non-veg? It depends. If you will prepare the recipe like a non-veg cuisine, that will taste like a non-veg. अगर आपको शाही पनीर बनाते हो तो वैसे मशरूम बना दो. That will automatically taste like a veg. How to create self-spawn? Carbonizing instead of Bavestin. Could you please repeat your question, please? Ma'am, we can use carbonizing instead of Bavestin in the sterilization method? Yes, both are same. That is 50% WP carbonizing. Okay, ma'am. Mancozeb? Carbendazim mancozeb? मैडम केनोडर्मा का जो कल्टीवेशन का प्रोसेस जो ट्रेनिंग वगैरह है वो कहाँ से मिलेगा? वो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, और दिवाकर जी भी आप लोगों के साथ कांटेक्ट में हैं, और जो ग्रुप है ग्रुप में भी आप डाल दीजिएगा। ओके मैम, ग्रुप में डाल दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आपसे यूट्यूब लिंक आप अच्छे समझाती हैं। हाँ, वो आप देखेंगे ना, अगर आपको बहुत सारी चीजें तो यूट्यूब में भी मिल जाएगी, आप गूगल आवाज भी डालोगे तो भी मिल जाएगी। तो कुछ चीजें जो आपको पढ़ाई है समझना है तो उसमें देखिएगा, प्रैक्टिकल आ जाएगा समझ में। जी मैम, जो बैग्स हम रेडी कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि होल्स हम करेंगे जिससे एयर पास तो जब हम केसिंग कर रहे हैं तो उसमें हम एयर और वाटर, आप बोल रहे हो कि डायरेक्ट नहीं आप कर सकते वरना डिकम्पोजिशन वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मैम डायरेक्ट एयर आपको वाटरिंग सिर्फ केसिंग में देनी है, 2 इंची लेयर में, अपने आप मशरूम बाहर आएंगे। मैम कल का पीपीटी सेंड कर दीजिए कि वो मशरूम का आज का भी। मैम रिकॉर्डिंग और पीपीटी मिल सकती है क्या? ये तो अपडेट कर पाएंगे उसके बाद में। बताइए, ये जो आप सब्सट्रेट में उगाते हैं इसको कोई टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है? ग्रुप में जुड़े हैं ना दिवाकर जी से। हेलो, ये जो सब्सट्रेट जिसके ऊपर आप ये मीडियम के ऊपर उगाते हैं उसको कोई टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है? हेलो मैम। कैन मशरूम ग्रो इन द ओपन एयर? हेलो मैम। हेलो मैं ये पूछना चाह रहा था, जिस मीडियम के ऊपर आप उगाते हैं उसको कोई टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है? हेलो मैम, मैं पूछना चाह रही हूँ कि कुछ किसान ऐसे हैं जो कलरफुल ऑयस्टर मशरूम पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ सीड उपलब्ध नहीं हो पाता है हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर बिहार में, तो ये कैसे उपलब्ध हो पाएगा? आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, आपको स्पॉन लैब का नंबर शेयर कर देंगे जो कि आपको सीड सप्लाई करेगा। ग्रुप में डाल दीजिएगा ये क्वेश्चन। जी बिल्कुल, ठीक है ना मैम। ये क्या मैम मुजफ्फरपुर बिहार में पॉसिबल है कलर ऑयस्टर मशरूम? हाँ पॉसिबल है जी, थैंक यू मैम। हेलो मैडम, मीडियम के ऊपर आप उगाते हैं ये सब, उसको कोई टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है?
कॉर्डिसेप के लिए यस 18 to 22 डिग्री सेल्सियस और लैब में उगती है वो। अच्छा, तो वहाँ हमको मैम जो बगीचे में कंट्रोल करना पड़ता जाती मछली वो मछली कौन सी है? मैम जो एक्स्ट्रा होता है बटन मशरूम का पड़ेगा छाव में। जी बटन मशरूम का जो पड़ेगा मशरूम बगीचे जो मिक्स कलर दूसरा होता है वो धूप में सुखाया जाए या छाव में? छाव में, अगर गर्मियां है तो। मैम कैसे पता लगाएंगे कि स्ट्रॉ जो है वो 50 to 60% आ गया है उसका ह्यूमिडिटी? हाँ, जब हाथ में दबाओगे ना, हथेली में लोगे और जब छोड़ो, एक भी पानी का बूंद यहाँ से नहीं निकलना चाहिए, और जब छोड़ोगे भूसे को और अपनी हथेली में देखोगे तो पानी की चमक हथेली में नहीं आनी चाहिए, सिर्फ ठंडक महसूस होनी चाहिए। ये देसी तरीका है, साइंटिफिक तो बहुत मशीनें इस्तेमाल करती हैं, ये सिर्फ दिमाग को ऐसे इस्तेमाल करो और पता चल जाएगा कि आ गया 50-60%। मैम जो बगीचे मैम कोई साइंटिफिक मतलब साइंटिफिक कोई है मैम? मॉइस्चर लेवल निकालना होता है, वो मैं आपको इतने शॉर्ट पीरियड में नहीं पढ़ा सकती, उसके लिए लैब टेस्टिंग और वगैरह चीजें होती है। मैम प्रैक्टिकल कैसे पता चलेगा ये सारी चीज आप बताओगे? मैं कैसे पहचानूं कि वो सही है मतलब उगाने के लिए या नहीं? क्या चीज? जो पैडी स्ट्रॉ होती है मैम, जी? तो मतलब डायरेक्टली जब मतलब कोई भी प्रोसेस करने से पहले मैं उसे देख करके कैसे पहचान सकती हूँ कि इसकी क्वालिटी अच्छी है हमारे कल्टीवेशन? इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, काली फंगस नहीं लगनी होनी चाहिए, बिल्कुल एक ग्रेड क्वालिटी का भूसा या पैडी स्ट्रॉ। क्वालिटी कैसे पहचान करें? क्वालिटी ऐसे जैसे कोई इन्फेक्शन नहीं है उसमें, जैसे इन्फेक्शन होता है आपको जो बेचने वाले खुद बताते हैं ABC ग्रेड, ठीक है? ओके मैम जो मशरूम मेरे बगीचे में यहाँ खुद पे से जो उगाते डिलीवर हैं करते हैं ना वैसे ABC ग्रेड नहीं बताते हैं, सभी बताते हैं कि अच्छे हैं, बट एक दो बार ऐसा हुआ है मैम कि भूसा बहुत मतलब बाद में पता चला कि नहीं भूसे में गड़बड़ी थी। वो आप पूछिएगा किसी से ना, मैं अभी आपको इतने शॉर्ट पीरियड में भूसे के बारे में इतना डेफिनेटली नहीं बता पाऊंगी। ABC ग्रेड के आते हैं, आप एक काम आप मैम कौन सा सबसे ऑयस्टर मशरूम के कल्टीवेट करने के लिए? Guessing and other things from your website or from your organization. Please, could you मैम please जो repeat your मशरूम question? बगीचे में उगाते हैं Can we वो buy मशरूम this कैसे casing and other things from your organization? Like again, many questions are coming. आप दोबारा मैं ये बोलिए पूछ सवाल रहा हूँ कि जो केसिंग वगैरह है, जो जितना भी भूसा वगैरह है, हम आपके ऑर्गेनाइजेशन से ऑनलाइन खरीद सकते हैं? Yes, you can purchase. So that we ensure our best quality. Yes, you can. You can, for that you need to coordinate with महंगा Shakuntala ji. मिलेगा। I already shared her contact number with you all. Divya, I have a That is the question. best because at least that will ensure a decent quality of the product we get. Yeah, we do supply ready-made mushroom bags as well. मैम जो मशरूम बगीचे में Okay, so Divya, I have a question. Hello. So I am from Himachal Pradesh and we are based at a height of like 7,000 feet. Okay. So 7,000 feet. So here the majority of the cultivation happen for apple farming. So majority of the things happen at apple farming. So which mushroom will be suitable at this location? Because here throughout the Shiitake. year, shiitake. Very best. Yes, shiitake, and it's in huge demand. I'm telling you. Okay, that's good because here the temperature is always like between 10 to 15 degree, like or 18 degrees, something Yes. like always. Like. But the room temperature will be 15 to 18, I'm telling you. And you said apple farming, Okay. shiitake will be the best for that place. Hello. मैम मेरे पास Can we take a ready-made bag also from you because here nobody produce wheat straw. So we either need to purchase it from the Amazon website or because wheat straw is not available at this location. You can directly purchase sawdust shiitake bags from us. We do prepare. And we procure as well. We purchase shiitake. We have a very huge requirement. So we supply shiitake bags to our growers and we purchase entire shiitake mushroom from those people. That's wonderful. So how much it's gonna be like if I'm going for a very initial stage? For Like that you need to coordinate with Shakuntala ji because this particular thing Rajpal ji is handling. So he will, as per the bag order, we have a different rates. okay. Ma'am, Okay. which Got your As per point. the quantity, actually. And which with the proper technical guidance as well for that.
हेलो मैम Yeah, absolutely. मैं We do बात need कर assistance रहा हूँ for मैम। that one as हेलो well. Like. You can directly Hello. speak with Shakuntala ji for this. Hello. Okay, Ma'am, which I'll mushroom talk is loud. that grow Dear Thank you participant, so we inside are in much. the going to share garden the of number our of ma'am. garden level? Don't worry. And Dr. Ratan Lal Sharma sir, Ma'am, which please ask your mushroom question. grow by Hello, inside hello, the hello. garden outside? hello. Which mushroom is that grow by itself in the garden outside? जी दोबारा बोलिएगा, आवाज नहीं आई मुझे। मैम कौन सा ये मशरूम जो बगीचे में खुद से उग जाती है वो मशरूम किस वैरायटी की है? कौन सी वाली मशरूम? जो गार्डन में खुद से इटसेल्फ इन द गार्डन आउटसाइड। जंगली होती है, खा मत लेना। 25 से 30 हजार रुपए किलो बिकती है क्या गुच्छी में? नहीं, गार्डन में जो खुद से उत्पन्न होती कहाँ से भैया, मैं कहाँ से बताऊँ कि गार्डन में पॉइजनस मशरूम की बात कर रहे हैं, कौन सी पॉइजनस है? मशरूम। आके देखना, बचाना तो सही है अगर। मैडम गुड इवनिंग मैम। मैडम हाउ टू मार्केट कहाँ है? मैम ऑयस्टर मशरूम का हमको सेल करना है मैम। ड्राई ऑयस्टर मशरूम हमारे पास है। मैं बनारसी से बात कर रहा हूँ मैम। आप शकुंतला जी से कांटेक्ट करिएगा। मैम कौन एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स फॉर रफ्तार देवेंद्र एंड कृषि विकास योजना। मैम बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। आई थिंक आप लोगों को एक फॉर्म भी दिया था, उसको भी आप फिल करिएगा। एंड रेस्ट आई हैव शेयर शकुंतला जी का कांटेक्ट नंबर शेयर किया है मैंने, क्योंकि इतने कम टाइम में आप लोगों के इतने सालों के जवाब देना भी पॉसिबल नहीं है। बट यू डोंट वरी, आपको कुछ मशरूम से रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो मैम मुझे ड्राई ऑयस्टर मशरूम सेल है, इसके बारे में बताइए। क्या प्रोसेसिंग होती है? मैडम हाउ मैम टू अप्लाई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स लाइक रफ्तार एंड कृषि विकास योजना। I request everyone to ask their question one by one. मैम which mushroom grow in the Can we apply for the entrepreneurship scheme like Raftar and Vikas Yojana in government? which mushroom grow in the open air? हाँ Please ask your question one by one. yes please ask the question one by one। पता क्या है, आप लोग 3 और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या सवाल आया। मैम मैं बोलिए can it grow in the मैम रोगड़ा मशरूम का कल्टीवेशन क्यों नहीं किया जाता है? कौन सा? मैम रुगड़ा मशरूम, मैम मैं झारखंड से हूँ। एंड रुगड़ा मशरूम है वो, उसको उसके बारे में पता किए हैं तो वो है कि नेचुरली ही उगता है। वो जो साल पेड़ होता है, साल पेड़ के जस्ट नीचे ही उसका जो सराउंड जो रूट जोन होता है उसके पेरिफेरी में ही वो उगाया जाता है। फोटोग्राफ शेयर करना पड़ेगा, वो जो रीजनल नेम होता है उससे मुझे आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, हर जगह अलग अलग नाम होता है ना। मैम अगर स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। मैम जैसे मुझे शेयर करना है। ओपन एयर में मैम हेलो ओपन एयर में Madam, can we get support from the government like Raftar and Ma'am, what is the Vikas Yojana? short term of storage mushroom? Yeah, madam, Raftar scheme and Krishi Vikas Yojana, can we get that support from the government for the starting of entrepreneur? Yeah, there are certain schemes, but the director of Krishi ICR director Patna is also there, na, so you can ask him as well. मैम जैसे कि अपन आप लोगों के बहुत सारे सवाल एक साथ आ रहे हैं, प्लीज आस्क वन बाय वन। सो मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द शॉर्ट टर्म स्टोरेज ऑफ मशरूम? व्हाट इज द शॉर्ट टर्म ऑफ स्टोरेज मशरूम? just for storage of mushroom, for fresh or dry one you're talking about? मैम हमको हेलो मैम हमको वाराणसी में मैं बोल रहा हूँ। ऑयस्टर मशरूम सेल करना, ड्राई ऑयस्टर मशरूम मैम। शकुंतला जी से बात करिएगा, बट सेल का वी विल कल आपको मैं पूरा प्लेटफॉर्म बताऊंगी कि आप लोग किस तरीके से अपनी ड्राई ऑयस्टर मशरूम सेल कर सकते हैं। मैम मशरूम को कितने दिनों में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है? कौन सी मशरूम? ऑयस्टर मशरूम बताया तो था हार्वेस्टिंग तैयार हो जाता है। मशरूम कितने दिनों में ग्रो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार? नहीं, जैसे कि अपन वर्मी कंपोस्ट में उगाना चाहते हैं उसका है। मैम बटर मशरूम में क्या प्रोसेसिंग होती है? आप लोग वन बाय वन अपने सवाल पूछिएगा ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैम प्लीज बोलिए हैंड रेज करने के लिए, और जो हैंड रेज करेगा उसको आप अनम्यूट कीजिए ऑन, तो इसमें सब कुछ सुन पाएगा।
Can mushroom be grow in the open air? अब ऑलरेडी क्या टाइम ओवर हो चुका Can है। mushroom grow in मैं the आप open सभी air? को रिक्वेस्ट करती हूँ कि दिवाकर जी तो है ही साथ में, बट अगर आपका कोई टेक्निकल इशू है, दिवाकर जी Ma'am, आपके साथ में है ही जो, can और mushroom be ग्रुप grow में भी in the बाकी open एडेड air? है और ग्रुप में शकुंतला जी भी एडेड है। कहीं ऐसा होता है जहाँ पे दिवाकर जी आपको टेक्निकल जवाब ना दे पाए तो शकुंतला जी इज देयर, उनका नंबर भी मैंने शेयर किया था, दैट इज 740-999-3860 740-999-3860। आप उनको व्हाट्सएप में मैसेज करिए, आप उनको कॉल करिए एंड शी विल टेल यू अबाउट ऑल दोस थिंग्स वन बाय वन। अभी क्या हो रहा है, 10 के 10 एक साथ सवाल पूछ रहे हैं। मैम नंबर प्रोवाइड करा दीजिए शकुंतला मैम का ऑयस्टर। 740 एक मैम, एक मिनट मैम, 7 Divya, I'm listening to everyone. Ma'am, can Yes. mushroom grow in the open air? शकुंतला जी also here. Hello. और दिवाकर जी के साथ में शकुंतला जी भी हैं। दिवाकर जी का भी नंबर आप सभी के पास में होगा बिकॉज ही इज द ऑर्गेनाइजर, और शकुंतला जी इज फॉर द टेक्निकल एस्पेक्ट। तो नंबर इज 740-999 740-999 Dear participant, I am going to कौन send a सा है comment in the मशरूम group. कल्टीवेशन के सबसे बेस्ट 3860। Ma'am, सबसे can बेस्ट we सीजन कौन सा grow है? in the open air? ओके मैम, थैंक यू मैम। So tomorrow I'll be there in the class for 10 minutes as well. है ना? Ma'am, Tomorrow can we I'll be in grow the class open air? for 10 minutes. और आप लोग जो है जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं बेचने से लेकर के उगाने से लेके फंडिंग से लेके, उसके लिए ये 1 घंटे की क्लास में तो पूरा हो नहीं पाएगा। तो गूगल मीट की अगर जरूरत पड़ेगी 1-to-1 टू ऑल द एंटरप्रेन्योर्स एंड ग्रोवर्स, सो आई विल प्रोवाइड यू द लिंक। आप मेरे से बात कर सकते हैं, है ना? Ma'am, can we grow in the open air mushroom? May I say something? Can we grow in the open air mushroom? So open में yes you can grow, but that is applicable for with the paddy straw, like in Odisha people are doing, but I can say apart from paddy straw you have to do all the cultivation inside the room. Okay, ma'am. Divya ji, may I say something? Yes, Anjali ji, how are you? Fine. First I compliment to Divya ji for very nice presentation. Very nicely explained. And really, I personally, I was sincerely seeing all the PPT and I was listening her. Really, it was very nice lecture. And just you ask all these people who are interested for taking some government subsidy, government scheme, so they can contact nearby the KVK in their district. Number one. Yes. Secondly, the state horticulture department, they are providing this type of funding from the RKVY scheme. So they can directly join to the district horticulture officer, and there is some total formalities, and then they will get this government scheme funding from RKVY. Secondly, through MIDS program, they can also take the subsidy and funding for their entrepreneurship. So these type of things they can really enjoy if they are interested to go for mushroom, because we know there are lady farmers who is earning more than crore rupees through this spawn production and mushroom, then value addition in mushroom. In particular in Bihar, somebody was asking from Muzaffarpur, there is Manorama Devi who is awarded by the ICR. Last 2 years back, she was awarded by the ICR for mushroom cultivation. So there are so many persons, but you have to open your eyes and just see what are going on in your area. Who is the pioneer? Who is the very good entrepreneurs? And then you contact those people. So Muzaffarpur person was something asking. You can contact Manorama Devi. She will provide you the spawn, and if you wish to know how to produce the spawn, there is a facility in Krishi Vigyan Kendras. So you can join. This type of things you can suggest. So thank you very much, ma'am. And I was really enjoyed your lecture as today. Thank you so much, sir. It was very nice meeting with you with this Google Meet, through this Google Meet.
थैंक यू सर। ओके थैंक हेलो यू मैम जय श्री राम। भैया कहाँ तक जाओगे? मैं जय तो श्री वहाँ राम। 5 घंटे आगे है होगा। हेलो बस मैम नियत पकड़ी मत पकड़ी, बस नियत मिल जाए मत पकड़ी। प्रोसेसिंग होती है। हर हर महादेव। या यहाँ ना रुके जी, आई थिंक या अब आज खड़ी का करिए कि हम नहीं सेशन कंक्लूड करते हैं। आई आस्क द कोऑर्डिनेटर कि प्लीज आप इसको हर हर महादेव मैम। कंटिन्यू करें। Okay, thank you, ma'am. हर Thank हर you, sir, महादेव। for giving हर such a हर beautiful महादेव। lecture, this class, and also the Dr. Anjani sir for guiding हर हर the महादेव। participant for the subsidy. So we will be starting the same thing, same class from the study, same timing. Thank you. हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय बोले। Thank you so much all. जय हर हर श्री राम। महादेव। हर हर महादेव। महादेव। Thank you, ma'am. Bye bye. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, thank you, थैंक यू मैम थैंक thank यू। you, thank you. Other, thank you.